एतराज करेंगे, मैं भी उस पर एतराज करूंगा। The teacher can make a mistake, but Almighty God cannot make a mistake. But when Almighty God, without you undergoing the test, He directly puts you in heaven or puts some people in hell. But Nigel will object, even I will object. If He puts me in hell, why did you put me in hell? ऐसे ही अल्लाह ताला तुम्हें बगैर इम्तिहान के फेल कर दे तो तुम वहां भी एतराज करोगे। If the teacher fails you, will you agree? That's why you are bringing down the Allah to the human, I'm at not the level of bringing the Allah, human I'm being. bringing you to the level of a human being, brother. I'm not talking about Allah. The human being will object. Allah doesn't require human being. हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में वेलकम है। आज की वीडियो पे रिएक्शन देंगे एक नई वीडियो पे। तो आज की वीडियो है ईसाई प्रोफेसर ने जाकिर नाइक से सवाल किया कि अल्लाह पाक को सब कुछ मालूम है तो इम्तिहान क्यों ले रहे और मुश्किल में क्यों छोड़ सबको डाल रहे हैं। इतनी लड़ाई झगड़ा और इतना मतलब दंगा फसाद जो हो रहा है दुनिया में, जो मुसीबत आ रही वो अल्लाह पाक सब कुछ मालूम है तो ये क्यों कर रहे हैं, मतलब इम्तिहान में क्यों डाल रहे हैं। अल्लाह हक है आप है मुश्किल में क्यों डाले हैं। तो जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और कैसे ईसाई प्रोफेसर और जाकिर नाइक में एक ज़बरदस्त फाइट भी हुई, बहसबाजी भी हुई। चलिए वीडियो को शुरू करते हो, जानते हैं जाकिर नाइक ने क्या कहा। और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, पेज को फॉलो लाइक कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं कि जाकिर नाइक और ईसाई प्रोफेसर में क्या बहसबाजी हुई और क्या ईसाई ने सवाल किया। So please come to. Will you keep your mouth shut? Then I'll say. Don't have to tell me, please. That's not democratic. This is not democracy. This is rules and regulation. Your democracy you can do in your home. This is not home. This is the question answer session. Before starting the question answer session, I told you the rules and regulation. Now you want to break the rules and regulation. How come you are educated? If you are not educated and if you are not cultured and you expect others to be, That's your perspective. I'm will sorry. you keep your mouth shut? I'm That's giving your the- words. I'm very you- concerned about the Almighty and But when you're asking the question, will you wait for the reply? Imagine a student keeps on interrupting and doesn't I allow you to do. give the reply. What do you tell him? You tell him to get out of the okay. classroom, correct? Okay. You asked the question, I heard very quietly. But you are trying to divert the focus because you are. I Will know you you are keep very your smart. mouth shut? Otherwise, we'll have to let somebody else give the chance. I'm I've shutting. been so Yeah, kind. yeah. I've been so kind. It's okay. Please go ahead. You are a teacher, so you think everyone is a student. Yes, you think I'm your student. I'm trying Brother, to get you asked what. the question, will you wait for the reply or not? Sure. Sorry for that. So if you are not following the rules, you are so inhuman. You are so uncultured. Now, according to me, if that is the rule, how a tiger should live, I'm neither happy, I'm neither sad. I have the idea. I'm neither How- happy, how a neither ti- sad, because that is his survival. If the tiger doesn't That's the kill- excuse. That's the excuse of the human being. I'm asking about the philosophy you of the are- Almighty God. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ। मैं खुदा के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं इस्लाम, ईसाईयत और हिंदू मत को नहीं मानता, ना ही खुदा पर यकीन है। मेरा सवाल है कि जब मैं बतौर टीचर अपने तलबा का इम्तिहान लेता हूँ तो मैं इंसान होने के नाते बहुत महदूद इल्म रखता हूँ, मगर इसी के बलबूते पर मैं ये जानने के लिए इम्तिहान लेता हूँ कौन सा तालिब इल्म अच्छा और कौन सा बुरा है। मगर मैंने जब आपके लेक्चर सुने तो आपने उनमें कहा था कि खुदा भी इम्तिहान लेता है। फिर आपने ये भी कहा कि वो हर चीज का इल्म रखता है। वो चीज मुझे जरा हजम नहीं हुई, क्योंकि अगर खुदा को हर चीज का इल्म है तो वो हमारा इम्तिहान क्यों लेता है, और जब हमारा इम्तिहान ही हो रहा है तो फिर हम नाइंसाफी, तशद्दुद, जंगे वगैरह क्यों भुगत रहे हैं। नाज़रीन, ये सवाल एक मुल्हिद शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ किया था। सवाल में कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर जरा सी भी बहस होती, मगर उस शख्स का रवैया आगे चलकर बहुत ही जारहाना होता गया, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको कई मर्तबा शटअप कॉल दी और ऐसा आईना दिखाया कि हॉल में बैठा हर शख्स तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। आपको इस सवाल और जवाब की पूरी तफसील हिंदी और उर्दू में बताते हैं। पहले आप इसका सवाल सुन लीजिए। So, as a teacher, you know, I give examination and the testing for the students because I'm a human being. I have very limited kind of knowledge.
But in your previous YouTube I watched, I enjoyed that very much. You mentioned that God also gave examination and a lot of tests. So if you consider that God as a teacher and giving examination and test, I'm not okay, because we human beings are suffering from humanity, like injustice, conflict, more than me, a lot of violence. So at the cost of the examination, at the cost of test, the humanity are suffering. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस टीचर के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में फरमाया है कि अल्लाह ने ही जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि देखे कौन अच्छे अमाल करता है, और कुरान सूरह फातिर में कहता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी किस्मत उसके साथ लपेट दी जाती है। इन आयात बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है अल्लाह ताला जानता है कि वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में। मगर जरा सोचें कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भेजे बगैर अपने इल्म की बिना पर कुछ को जन्नत और कुछ को जहन्नुम में डाल दे। जो जन्नत में जाएंगे वो तो कोई एतराज नहीं करेंगे, मगर जो जहन्नुम में जाएंगे वो एतराज करेंगे कि या रब हमें क्यों दोज़ख में भेज दिया, हमने क्या किया है। भाई तुम भी तो एक उस्ताद हो, तुम मुझे बताओ कि जब तुम सारा साल एक ही क्लास को पढ़ाते हो तो क्या तुम्हें पता नहीं चल जाता कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, ये एवरेज है और ये बच्चा पढ़ाई में बहुत ही बुरा है। अगर टीचर ये कहे कि मुझे पता है कि फलां बच्चा फर्स्ट आएगा और वो इम्तिहान दिए बगैर ही उसे फर्स्ट करार दे देता है, दूसरे बच्चे से मुतालिक वो कहता है कि मुझे पता है कि ये सिर्फ पास होगा तो वो उसको पास कर देता है, और तीसरे बच्चे से मुतालिक उसको पता है कि उसको तो सबक याद ही नहीं होता था तो वो उसको फेल कर देता है। फर्स्ट आने वाला बच्चा शायद शिकायत न करे मगर बाकी दोनों करेंगे कि हमारा इम्तिहान लिए बगैर ही टीचर ने अपना फैसला कैसे सुना दिया। वो तो तुम्हारे खिलाफ अदालत में चले जाएंगे। तुम उनसे ये नहीं कह सकते कि मुझे तुम्हारा पता है इसलिए मैंने ऐसा किया। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए तुम्हें उनका इम्तिहान लेना ही पड़ेगा, और साथ ही उन बच्चों और उनके वालिदैन को भी मुतमईन करने के लिए इम्तिहान लेना तुम्हारी मजबूरी है। और दूसरी बात ये है, तुम इंसान हो, तुम गलती कर सकते हो सकता है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है उसकी बजाय दूसरा बच्चा फर्स्ट आ जाए, और जो पढ़ाई नहीं करता वो इम्तिहान से पहले मेहनत करके पास हो जाए। मगर जहाँ तक खुदा की बात है तो वो गलती नहीं कर सकता। जब अल्लाह ताला लोगों को बगैर इम्तिहान लिए जन्नत या जहन्नुम में भेज दे तो लोग तो एतराज करेंगे, मैं भी उस पर एतराज करूंगा। The teacher can make a mistake, but Almighty God cannot make a mistake. But when Almighty God, without you undergoing the test, He directly puts you in heaven or puts some people in hell. But Nigel will object, even I will object. If He puts me in hell, why did you put me in hell? That's a human being reflection. That's not Almighty's knowledge. नाजरीन, यहाँ उस टीचर ने एतराज किया कि मैं तो चलो इंसान हूँ मगर खुदा को तो सब कुछ मालूम है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है, वो क्यों इम्तिहान ले रहा है। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस टीचर से कहा कि भाई इंसान भी तो एतराज करेंगे, अल्लाह ताला तो जो भी करेगा वो 100% दुरुस्त ही है, मगर इंसान तो एतराज करेंगे कि अल्लाह ताला ने नाइंसाफी की। ये इंसानों को भी मुतमईन करने के लिए है, जब हिसाब किताब हो रहा होगा तो कोई भी एतराज नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत को पैदा किया। जब क़यामत वाले दिन इंसानों के हाथों में अमालनामा दिया जाएगा तो कोई भी एतराज नहीं कर पाएगा कि खुदा ने नाइंसाफी की है। उनकी जिंदगी, उनके अमाल उनके सामने खड़े होंगे, उनके आज़ा गवाही देंगे, तो वो कैसे कह सकेंगे कि खुदा नाइंसाफ है। अगर आपने इम्तिहान अच्छा नहीं दिया तो फिर ये भी नहीं कह सकते कि टीचर ने अच्छा नहीं किया। आप जानते होंगे कि आपने अच्छा किया या बुरा किया, इसीलिए अल्लाह ताला के इंसाफ पर सवाल उठाने की जुर्रत भी नहीं कर सकेंगे। उस शख्स ने कहा कि इसीलिए तो मेरा खुदा पर यकीन नहीं है कि वो सब जानते हुए भी हमें मुश्किल में डाल रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे पूछा कि क्या तुमने ग्रेजुएशन की है? उसने हाँ में जवाब दिया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर टीचर तुम्हारा इम्तिहान लिए बगैर ही तुम्हें फेल कर देता तो क्या तुम एतराज न करते? ये शख्स बोला कि मैं तो इंसान हूँ या टीचर इंसान होता है, मगर अल्लाह ताला को क्यों टीचर से मिला रहे हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अल्लाह ताला को इंसान के साथ नहीं मिला रहा, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, इंसानों से मुतालिक बता रहा हूँ कि वो एतराज करते हैं। अल्लाह ताला को इंसानों की जरूरत नहीं है, इंसानों को अल्लाह ताला की जरूरत है। अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें बगैर इम्तिहान के फेल कर दे तो तुम एतराज करोगे, ऐसे ही अल्लाह ताला तुम्हें बगैर इम्तिहान के फेल कर दे तो तुम वहाँ भी एतराज करोगे। If the teacher fails you, will you agree? That's why you are bringing down the Allah to the human. I'm not bringing Allah, I'm bringing you to the level of a human being, brother. I'm not talking about Allah. The human being will object. Allah doesn't require human being. I'm asking you, if your teacher would have failed you without you undergoing the bachelor's examination, would you object or not?
Yes, because you are a human being. So same way if God fails you, puts you in hell, will you object or not? Yeah, that's the डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देना शुरू किया जिसमें उसने एतराज किया था कि अगर इम्तिहान ही लिया जा रहा है तो फिर तशद्दुद, नाइंसाफी और इस जैसे दूसरे खतरात क्यों हैं? डॉक्टर साहब ने उसको बताया कि ये सब चीजें दुनिया में इसलिए हैं क्योंकि हमारा इम्तिहान हो रहा है। तुम अपने तुलबा को मुश्किल इम्तिहान देते हो, उनको सारी सारी रात जागना पड़ता है, मगर वो तुलबा ये नहीं कह सकते कि हमारा टीचर बहुत बुरा है, ये हमारी नींद खराब करता है, क्योंकि यही तो इम्तिहान है। यही तो देखना होता है इम्तिहान में कि कौन ज्यादा मेहनत करता है और कौन कम। जितना मुश्किल इम्तिहान होता है उतना ही ज्यादा बड़ा इनाम होता है। यही तो देखना होता है कि कौन मुश्किलों से घबरा कर तैयारी करना छोड़ देता है, कौन आसाइशों में मुब्तला होकर आखिरत की फिक्र छोड़ देता है। ये मुश्किलें, जंग, तशद्दुद, नाइंसाफी सब कुछ इम्तिहान है। अगर मुझे इनाम लेना है तो मुझे तैयारी करना ही पड़ेगी। कुरान पाक इस दुनिया के इम्तिहान का हिदायतनामा है। इसके मुताबिक जिन चीजों से बचने का कहा गया है उनसे बचना चाहिए, जिनके करने का कहा गया है तो उसको करना चाहिए। नाज़रीन, ये टीचर इन दोनों जवाबों से मुतमईन हो चुका था, मगर उसका तीसरा सवाल भी तैयार था और डॉक्टर साहब की इजाजत से उसने ये सवाल किया और कहा कि ये दुनिया ऐसे बनी है कि एक शेर एक हिरन का शिकार करता है, उसको अपना खाना बनाता है। मेरे हिसाब से तो एक कार्टून बनाने वाला खुदा से बेहतर है, क्योंकि वो अपने तखय्युल से एक अच्छी दुनिया बनाता है जिसमें कोई दुख नहीं होता, कोई आफत नहीं आती और सब हंसी खुशी रहते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। ये शख्स अब खुदा पर सवाल उठा रहा था। I question what is the quality, what is the philosophy of the God? There are many answers, but those answers are self-contradictory. So, according to me, a cartoonist is better than God because cartoonist, he has a lot of creative, perfect kind of things. So, yeah, that's my question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के ऊट पटांग सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाई मुझे एक कार्टून बनाने वाले का बताओ जो परफेक्ट है। मैं तो नहीं जानता कि कोई इंसान ऐसा हो जो परफेक्ट हो। उस शख्स ने कहा कि टॉम एंड जेरी परफेक्ट कार्टून्स हैं, जहां आखिर में हर चीज सही हो जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तुम अगर कहते हो कि टॉम एंड जेरी परफेक्ट हैं, तो फिर तो तुम ही मुझे कार्टून नजर आ रहे हो। अगर तुम इंसान होते हुए भी चूहा बनना चाहते हो तो फिर मुझे तुम्हारे दिमाग का चेकअप करना पड़ेगा। अगर तुमसे गलती हो गई है तो सॉरी कह दो। अपनी गलती का दिफा करते करते तुम और भी बेवकूफ नजर आ रहे हो। Later on, yeah, impossible things make possible in the cartoon. Is Tom and Jerry perfect? Do you think Tom and Jerry is perfect? So you should look like Tom and Jerry then. If a human being tells me he wants to become a rat, then I'm a doctor. I will have to check his mental status. Do you want to become a rat? It depends. That means you have to go for a checkup. So my question was. My question is, you are saying Tom is perfect and Jerry is perfect. The rat and the cat is perfect. So you want to become a rat. See, if you know you have made a mistake, say I'm sorry and matter is over. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब उसके शेर और हिरन वाले सवाल के जवाब में कहा कि अगर शेर हिरन को मार देता है तो मुझे ना बुरा लगेगा ना अच्छा लगेगा। उसकी फितरत ही ऐसी है कि उसको जिंदा रहने के लिए किसी को मारना पड़ता है। उस शख्स ने बोलना जारी रखा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको शट अप कॉल दे दी। If the tiger doesn't That's the excuse. That's the excuse of the human being. I'm asking about the philosophy of the Almighty God. Almighty God. But you are bringing down the philosophy of the beautiful, merciful God to the human level. Now that is complete reflection of the limited human knowledge. I'm sorry to this. You're asking a question. Will you hear my reply? Yes, I'm. So for hearing the reply, I have to keep your mouth shut. जाकिर नाइक साहब ने उस शख्स की खूब क्लास ली और कहा कि मैं इंसानों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं इंसानों की मंतक के मुताबिक ही जवाब दूंगा। तुम बार बार बात काट रहे हो, सुन नहीं रहे। तुम कहाँ के टीचर हो? क्या तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम पढ़े लिखे हो? तुम्हें हिरन के मरने पर दुख होता है, मगर तुम हर सांस लेने के साथ ही लाखों जरासीमों को मारते हो, उस पर तुम्हें कोई दुख नहीं। अगर तुम किसी के मरने पर खुश नहीं हो तो सांस लेना छोड़ दो। अगर मैं एंजॉय करने की गर्ज से किसी को मारता हूँ तो फिर मैं मुजरिम हूँ, लेकिन जिंदा रहने के लिए मुझे हिरन को मारना पड़ेगा तो मैं ये करने का हक रखता हूँ, क्योंकि मुझे भी जिंदा रहना है। मैं अपनी खुशी के लिए किसी कीड़े को भी नहीं मार सकता, लेकिन अगर कोई जिंदा रहने के लिए किसी को मारता है तो ये कुदरत का कानून है, उसको मानना चाहिए। ये कुरान पाक इंसानों के लिए हिदायतनामा है, जानवरों के लिए नहीं। जानवर अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ये अपनी फितरत पर चलते हैं, मगर इंसानों की अपनी मर्जी होती है, इसलिए हिदायतनामा भी उन्हीं के लिए भेजा गया है। मेरे लेक्चर का जो मौजू है उससे मुतालिक तुमने एक लफ्ज नहीं कहा, अपनी ही हांकते जा रहे हो। तो आपने देखा क्या जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। एकदम ज़बरदस्त ईसाई प्रोफेसर को एकदम धो डाला। मतलब
बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने सवाल किया था कि अल्लाह है इम्तिहान सब कुछ मालूम है तो इतनी मुश्किल क्यों आती है, तो जाकिर नाइक ने बताया कि है सब कुछ मालूम है इस क्योंकि आखिरत में कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए और अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह पाक क्यों सज़ा दे रहे। तो बहुत ही ज़बरदस्त जवाब था। और ईसाई जो प्रोफेसर था वो कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल वैसे ही दे रहा था। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, पेज को फॉलो लाइक करें। और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बहुत नॉलेज वीडियो थी। आपको कैसे लगी कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को। ऐसे ही नॉलेज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।